everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Women, Caste and Reforms. So let's start the chapter. Chapter 7, Women, Caste and Reforms. Learning objectives. Social levels, women suffered, child marriage, social reform movement in the north, women's education, social reforms movement in the south and social reforms movements among Muslims. Let's start. It is said that women in ancient India were enjoyed करती थी equivalent status and rights with men in all spheres of life. ये कहा जाता है. Further, women were properly educated in early Vedic period. अब women की जो condition थी society में वो धीरे धीरे deteriorate हुई during the medieval period. उस टाइम पर बहुत सारी evil practices थी जैसे child marriage हो गए, सती system हो गया, female infanticides, ये बहुत ज़्यादा large scale पर होने लगा. Further system भी start हो गया. So these women were also forced to practice dhanana. Rajput women जो हैं of Rajasthan, they practice jauhar, which refers to the practice of the immolation of all the wives and daughters of conquered warriors for avoiding arrest and subsequent molestation by the enemy. तो polygamy भी बहुत common था हिंदू क्षत्रियास में. If there are 5 brothers and then one girl is married to all the brothers. So this system was followed very few years back. It is a polygamy. It mostly happened in Kshatriyas. So at the same time, many women excelled in arts, literature and music. Women were also rulers also. Medieval period mein, like Rani Lakshmi Bai was a great ruler of her time, but it was she was for very less years. Some of the great women rulers were Razia Sultan, the Gond Queen Durgavati, Chand Bibi, Noor Jahan. So in spite of all these successful women, जो condition थी poor Indian women की was the same. During that period, girls were married at a very tender age. बहुत ही कम एज पर उनकी शादी कर दी जाती थी और sati was also practiced where women were forced to jump in the burning funeral of a dead husband. So if in case due to some reason the man dies, so in sati system, the women or the widow of that person is forced to die with her husband in the same funeral. So Devdasi tradition was common in southern India where girls were married to deity or trees से उनकी शादी कराई जाती थी. Modern India witnessed some developments in the status of women. There were many women reformers in India who worked for the betterment and upliftment of their other female counterparts. During the British rule, the Indian society suffered from various evils. Chief among them was the indifferent attitude of the society towards women. Social evils women suffered. Women suffered from the following disabilities. Low status of women, like women was socially subordinate to the man in one way or the other. She had never been permitted to live independently. She was considered हमेशा उसको man से inferior माना गया, उसको independently काम करना नहीं allowed था. Neglect of female education, women were also neglected in the field of education. भी उनको नई education में मना कर दिया जाता था. Even there are some places today also that do not allow their girl child to get education. Child marriage, children were married at a very young age पर उनकी शादी हो जाती थी when this ceremony carried no meaning to them. जब तक उनको मतलब भी नहीं पता था. So in case child husband died, तो child bride became widow and suffered all her life. तो वो छोटी सी ही सफर करती थी. Dowry system, marriage of a girl was almost impossible without a suitable dowry. Many a poor girls had to remain unmarried रहना पड़ता था और they have to commit suicide to relieve the agony of her parents. Female infanticide, to some people, birth of a daughter was a curse. As such, they used to kill them the moment they were born. तो तभी उनको मार दिया करते थे. Sati system, sati was regarded the noblest virtue. एक widow के लिए कि वो burn कर ले खुद को ही अपने उसी जलते हुए in the funeral of a dead husband. तो अगर वो hesitate करते हैं तो the so-called priests and relatives push them उनको जलती हुई आग में धकेल देते हैं. ये प्रूव करता है कि कितना सोसाइटी ने women को torture किया. No permission for widow remarriage. Man could marry as many times as he liked, but a woman, अगर वो widow हो जाती है, she was regarded as a burden both on the family and society. She commanded no respect and lived a life of neglect and despair. Absence of independent status. A woman without her husband had a low status in a society. Excesses on the working women like peasants, laborers. Women peasants जो होते थे, they were supposed to work on all field as they look after the household भी देखें, field पर भी काम करें. But in spite of putting in longer hours of work, मेल से भी ज्यादा वो काम करने के बाद भी उनको wages कम मिलती थी. They were subjected to worst exploitation. No right of Hindu women to inherit property. हिंदू सोसाइटी में वुमेन का राइट कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता अपने पेरेंट्स की. सैड प्लाइट ऑफ मुस्लिम वुमेन.
डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स इतना सिंपल है कि जनरली मुस्लिम women dreaded it. Besides the custom of polygamy जो अलाउड करता था उनके मेन को कि वो एक से ज्यादा बार शादी कर सकते हैं, that made the life of Muslim women miserable than Hindu women. Your wise find out whether the practice of social evil like sati and child marriage still exist in India. Find the name of such places and check the role of government in abolishing them. Social reforms movements in the north. Raja Ram Mohan Roy 1774 to 1833. राजा राम मोहन रॉय बिलोंग करते एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। वो डेडली पूरी सारे एविल कस्टम्स के अगेंस्ट थे जो हिंदुइज्म में है। हिस्टोरियंस हैव ऑफन कॉल्ड हिम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनको बुलाया जाता था, एंड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स, उन्होंने वर्क किया टायरलेसली टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। ही स्टार्टेड, आत्मीय सभा उन्होंने स्टार्ट किया टू लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट सोशल एविल्स जो प्रिवेल हैं इन बंगाल। उन्होंने स्टैब्लिश करा ब्रह्मो समाज। रिलीजन के फील्ड में उनका एम था टीचिंग मोनोथिज्म, that is belief in one god instead of polytheism, that is belief in many gods and goddesses. In the social field में it aims was to work for social welfare के लिए काम करना। ब्रह्मो समाज campaigned against sati, child marriage, polygamy, caste distinctions and untouchability. उनका जो कैंपेन था अगेंस्ट सती थ्रू वो जनरल संवाद कॉमेडी अराउज्ड द ऑपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, जो ऑर्थोडॉक्स थे उन लोगों को हटाने की बहुत कोशिश करी, अपोज किया। उन्होंने कन्विंस किया लोगों को कि सती जो है वो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो एफर्ट्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को परसुएड किया, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को, कि वो सती सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दे। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द ओपनिंग ऑफ हिंदू कॉलेज, उन्होंने खोला कैलकाटा में, एंड सेटिंग अप ऑफ अ मॉडर्न इंडियन न्यूज़पेपर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 to 1819, बॉर्न इनटू अ पुअर ब्राह्मण फैमिली में वो पैदा हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर थे और वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। फियरलेस, ऑनेस्ट, ही वाज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग। उनकी पूरी लाइफ वाज स्पेंट इन अपलिफ्ट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। उनका रिलेंटलेस एफर्ट्स लेट द गवर्नमेंट टू पास विडो रिमैरिज एक्ट को पास करना 1856 में। पहला लॉफुल हिंदू विडो रिमैरिज अमंग द अपर कास्ट इन आवर कंट्री वाज सोलमनाइज्ड हुआ इन कैलकाटा ऑन 7 दिसंबर 1856। उन्होंने अकम्पनीड करा जॉन एलियट, ड्रिंकवाटर बर्ट्यून ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल उन्होंने कैलकाटा में खोला 1849 में। उन्होंने मोर गर्ल्स स्कूल सेटअप करे बंगाल में 1857 से 1858 के बीच में। एज द प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के कैलकाटा, विद्यासागर ने इनकरेज करा नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को कि वो संस्कृत पढ़े। उन्होंने अपोज करा कास्ट सिस्टम को, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी बच्चों के लिए लोअर कास्ट के, ताकि वो संस्कृत और लिटरेचर पढ़ सके। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 to 1883, रिलीजियस रिफॉर्म। स्वामी दयानंद जो थे बहुत ही ग्रेटेस्ट रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर रहे 19th सेंचुरी के। उन्होंने ही आर्य समाज फाउंड किया 1875 में। उन्होंने आइडियल वर्शिप, मूर्ति का पूजा करने को उन्होंने अपोज किया, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस क्रीड्स। उनका स्लोगन था बैक टू वेद, क्योंकि वो बिलीव करते थे वेद के अंदर ही हमारी साइंस का ट्रुथ है। एज वेल एज उन्होंने एक फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेशनल प्राइड जो है क्रिएट किया। उन्होंने स्टार्ट करा था एक मूवमेंट शुद्धि, प्योरिफिकेशन, जिसमें हिंदूज जो कन्वर्ट होते थे ना अदर रिलीजन में, वो वापस हिंदुइज्म में आ जाते थे। वो डायरेक्टली प्रीच करते थे बहुत लोगों को जिसमें वो समझ सके। सोशल रिफॉर्म, स्वामी दयानंद ने प्रीच करा सोशल इक्वालिटी होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए आर्य समाज के ओपन करे वेज लाइक शूद्रास और जितने भी डिप्रेस सोसाइटीज थी, बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम को भी अपोज किया। एजुकेशनल रिफॉर्म, स्वामी दयानंद फेवर थे संस्कृत की स्टडी में और वेद के, इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न साइंस। आर्य समाज ओपन मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बॉयज गर्ल्स के लिए उन्होंने खोले। उनको एज डीएवी दयानंद एंग्लो विदियन कॉलेज भी कहा जाता है स्कूल्स। इन्फ्लुएंस जो था दयानंद और आर्य समाज का, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, उन्होंने वुमेन को अपलिफ्ट किया, वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम ग्रेटर देन एनी अदर रिफॉर्म इन इंडिया। फैक्ट ट्रेजर, इवन टुडे इट इज बिलीव्ड कि सर्टेन जॉब्स लाइक टीचिंग एंड नर्सरिंग ये अप्रोप्रिएट है वुमेन के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सच जॉब्स? फाइंड आउट रीजंस बिहाइंड दिस बिलीफ एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स इन दिस क्लास। चाइल्ड मैरिज, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है वो विडो हो जाती है बहुत छोटी सी एज में, क्योंकि उनके प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज की वजह से। गर्ल्स को बहुत ही मैरिड ऑफ बहुत ही यंग एज पर शादी करा दी जाती है। पॉलीगैमी बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। गर्ल्स को मैरिड कर दिया जाता था मेन हु वर मच ओल्डर देन देम एंड हु हैड मेनी अदर वाइफ्स भी हो। ड्यू टू चाइल्ड मैरिज की वजह से जो रेट था मैटरनल मोर्टालिटी का, नंबर ऑफ वुमेन दे वर डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ was very high उस टाइम पे, क्योंकि इतने कम एज में शादी हो जाना और उसके बाद they were not, their body was not ready to accept the things
so that's why they die at a very young age. behram ji malabaरी वो पारसी रिफॉर्मर थे जिनके नोट्स थे ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड इन 1884 एंड स्टार्टेड अ डिबेट उन्होंने स्टार्ट किया कंट्री में अमंग द इंटेलेक्चुअल्स। उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द एज ऑफ कंसेंट टू बी रेज्ड। 1891 में एक एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ विच रेज द एज ऑफ मैरिंग फॉर गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 years। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट प्रॉपर्ली जिसको शारदा एक्ट भी कहते हैं उसने रेज किया एज ऑफ मैरिंग फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स की और बॉयज के लिए 18 ईयर्स। फिर आया वुमेन्स एजुकेशन। बहुत से रिफॉर्मर्स ने बिलीव करते थे कि वुमेन को एजुकेट करना बहुत जरूरी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, हाउएवर दीज स्कूल्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। इससे डिस्करेज करा पेरेंट्स को फ्रॉम सेंडिंग, अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। जब स्कूल्स पहले इंट्रोड्यूस्ड हुए बहुत से लोगों जो many people जो थे they were afraid that they would have a corrupting influence on girls away from their home, prevent them from their doing their household chores and make them travel through public place। 1849 में ईश्वर चंद विद्यासागर जेडी बेथुने प्रेसिडेंट जो थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के साथ उन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाया कैलकाटा में। विद्यासागर ने एक नंबर ऑफ स्कूल सेटअप करे गर्ल्स के लिए बंगाल में, जिसमें से कुछ जो थे वो अपने एक्सपेंस पर चलाते थे। आर्य समाज स्टैब्लिश करा था स्कूल्स फॉर गर्ल्स पंजाब में गर्ल्स के लिए। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले एंड उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले ने बहुत सारे स्कूल्स बनाए गर्ल्स के लिए, जिसमें एक था जो लोअर कास्ट में जो गर्ल्स पैदा होती थी उनके लिए। ज्योतिराव फूले ने एजुकेट करा अपनी वाइफ को ताकि वो और गर्ल्स को पढ़ा सके। प्रार्थना समाज स्टैब्लिश हुआ महाराष्ट्र में बाय MG रानादे एंड RG भंडारकर इन 1867। इट वॉज सिमिलर टू द ब्रह्मो समाज ऑफ बंगाल, के बराबर था। उन्होंने अपोज करा सती को, चाइल्ड मैरिज को और एडवोकेट किया विडो रिमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। वेद समाज स्टैब्लिश्ड हुआ मेड्रास में इन 1864 बाय श्रीधरलू नायडू एंड वो ऑल्सो इंस्पायर्ड हुआ बाय ब्रह्मो समाज। उसने प्रमोट करा वुमेन की एजुकेशन को एंड विडो रीमैरिज। स्कूल्स भी सेटअप हुए मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी। मुस्लिम वुमेन लाइक जैसे बेगम भोपाल की, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन को वुमेन के मंग स्प्रेड करने में। दे ओपनड अ प्राइमरी स्कूल खोला उन्होंने गर्ल्स के लिए एट अलीगढ़। बेगम रोकिया सखावत हुसैन स्टार्टेड अ स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन कैलकाटा कॉल्ड सखावत मेमोरियल स्कूल इन हर हस्बैंड्स मेमोरी। सुल्ताना's ड्रीम was a story written by her which condemned the restrictions imposed on women's मुस्लिम women के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा। इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने डिपिक्ट करा कैसे पर्दा सिस्टम डिप्राइव्ड करता है women of various life experiences को। बहुत सारी चीज़ों की जो लाइफ की चीज़ें उनसे वो पीछे हट जाती हैं। सर सैयद अहमद खान ने कंडेम किया था पर्दा सिस्टम को एंड वो सपोर्टर ऑफ वुमेन एजुकेशन के सपोर्टर रहे। बहुत से एजुकेटेड वुमेन को पढ़ाया जाता था घर में ही, लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स उनके पढ़ाते थे। एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया बहुत सी वुमेन ने लर्न किया कुरान पढ़ना अरेबिक में। दे वर होम स्कूल बाय वुमेन ट्यूटर्स, उनको वुमेन ट्यूटर्स उनको लगाई जाती थी घर में। सेवरल वुमेन ने लिखना सीखा, दे क्रिटिसाइजिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। पंडिता रामाबाई एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थी जिन्होंने फेल्ट करा हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। उन्होंने एक बुक लिखी हाई कास्ट हिंदू वुमेन ऑन द मिजरेबल प्लाइट ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो सिचुएशन रही, जो हालत रही उसके ऊपर। ताराबेल शिंदे एक वुमेन एजुकेटेड थी, होम में घर में ही उन्होंने एजुकेट किया इन पूना। उन्होंने लिखी स्त्री पुरुष तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, जिसमें वो उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि क्या सोशल डिफरेंसेस होते हैं एक मैन एंड वुमेन के बीच में। रसुंदरी देवी ने एक विमेन थी जिन्होंने अपने आप को पढ़ना लिखना सिखाया, सीक्रेटली कैंडल लाइट में पढ़ती थी रात में। उनकी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन जो है वो हमें बताता है कि उस टाइम पे गर्ल्स की लाइफ कैसी थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विमेन ने अपने आप काम करना शुरू करा। दे रोट एक्सटेंसिवली प्रोपोगेटिंग रिफॉर्म्स फॉर विमेन। दे फॉर्म्ड विमेन्स एसोसिएशन, बहुत सारे स्कूल्स बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर विमेन। मोर एंड मोर पीपल अब डॉटर्स को स्कूल भेजने लगे। विमेन ने यूनिवर्सिटीज जाना शुरू करा, कुछ टीचर्स बन गई, कुछ डॉक्टर्स बन गई और कुछ राइटर्स बन गई। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू करे टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं फीमेल सफरेज के लिए एंड प्रोवाइडेड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ने फेल्ट किया कि हिंदू वुमेन जो अडॉप्ट कर रही हैं वेस्टर्न वेज को, वो हिंदू कल्चर और फैमिली वैल्यूज को के अगेंस्ट जा रही हैं। तो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स थे वो बहुत उन्हें वरी होने लगे इन सब चेंजेस के बारे में जो हो रहे थे। तो बहुत से लोग बिलीव करते थे कि वुमेन को एजुकेट करना तो बहुत यूजलेस काम है, क्योंकि उससे वो प्रिपेयर, हम घर के काम उन्हें करने हैं तो उनको हम एजुकेट ही क्यों करें। और एजुकेटेड वुमेन होगी तो वो उसे एक
सस्पिशियस नज़रों से देखा जाता है। कुछ लोग ये महसूस करते हैं, फील करते हैं कि गर्ल्स जाट को एजुकेशन ऐसे जगह पे देने चाहिए जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाती, नीडल वर्क, हाइजीन, जो यूजफुल हो सब्जेक्ट्स के लिए उनके लिए, एंड वुड हेल्प देम इन मेकिंग देम गुड, अच्छी होम मेकर्स और मदर्स बना सके। Supporters of women's education argued that कि educating women was important as only educated wives ही होती हैं जो support provide करती है men को western ways में। कुछ social reforms movements in the south. Chembai Sridharan Naidu, inspired by the Brahmo Samaj, Ved Samaj established Dua in Madras in 1864. Sridharan leader थे of this समाज और उन्होंने translate करा नंबर ऑफ ब्रह्मो समाज बुक्स तमिल में, तेलुगु में। समाज वर्क फॉर एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम के लिए काम किया, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, विडो रिमैरिज के लिए। कंदुकुरी वीर सालिग्राम, ही द रिफॉर्म मूवमेंट इन साउथ इंडिया, बोर्न इनटू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली ऑफ आंध्र में पैदा हुए। उन्होंने एडवोकेट किया सोशल रिफॉर्म्स को। 1876 में उन्होंने एक तेलुगु जर्नल स्टार्ट करी थी और 1878 में फाउंडेड राजा मुंधारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। उनकी जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही कि वुमेन को अपलिफ्ट कराना, प्रमोशन गर्ल्स एजुकेशन का और विडो रीमैरिज। नारायणा गुरु, वो फेमस थे जो काम वो करते थे फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन केरला। ही वाज बोर्न 1854 में, वो पैदा हुए इन अ इजावा फैमिली। इजावा वाज कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। नारायणा गुरु स्टडीड संस्कृत एंड वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्म। He laid the foundation of temples in Kerala without the images of god and goddesses. नारायणा गुरु ने फाउंड किया श्री नारायण धर्मा परिप्लाना योगा में 1903 में। इट वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड डिमांडेड दैट देयर शुड बी ओपन एंट्री होनी चाहिए टेम्पल्स में, व्हिच द प्रीस्टली क्लास डिड नॉट अलाउ। ही रिगार्डेड ऑल डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट एज मीनिंगलेस मानते थे। उन्होंने एडवोकेट किया प्रिंसिपल ऑफ वन गॉड होना है और वन ही रिलीजन है। रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान 1817 to 1898। जब रेस्ट ऑफ द सोसाइटी बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट चेंजेस को फेस कर रही थी तो मुस्लिम कम्युनिटी अभी भी बैकवर्डनेस में थी। मैन जिसने अपना बहुत ही बेस्ट किया मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने में एंड चेंज बी आर अम्बेडकर देयर सोशल एंड पॉलिटिकल आउटलुक व्हाट सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ सर ऑन हिम, उनको दिया। सोशल रिफॉर्म्स, वो चाहते थे कि वुमेन का स्टेटस बढ़े सोसाइटी में। उन्होंने एडवोकेट किया, पर्दा सिस्टम को हटाने की कोशिश की, एजुकेशन अमंग वुमेन को स्प्रेड करना। उन्होंने कंडेम्ड किया कस्टम ऑफ पॉलीगैमी एंड इजी डाइवोर्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उन्होंने एडवाइस किया मुस्लिम्स को कि वो इंग्लिश एजुकेशन रिसीव करें एंड लर्न वेस्टर्न साइंसेस एंड कल्चर एंड अडॉप्ट मॉडर्न वेज एंड आइडियाज। उन्होंने फाउंड करा मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875 फॉर द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। लेटर ऑन इट बिकेम फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। उनके पास बहुत सारी वेस्टर्न बुक्स थी जिनको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया मुस्लिम्स के लिए। उनका रिफॉर्म्स पर बेसिकली था कि मुस्लिम कम्युनिटी अपलिफ्ट हो सके। उन्होंने बहुत सारे एंग्लो मुस्लिम एसोसिएशन भी सेटअप करी जिसमें सपोर्ट मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, पायनियर इन द फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया वो थे बी आर अम्बेडकर। बचपन से ही उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस को फेस किया था कास्ट सिस्टम को लेकर। जब वो बड़े हुए तो इंटीग्रेट करना चाहते थे कि जो अनटचेबल्स हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आए, उन्हें एजुकेट किया जाए और बाय द एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट्स। तो अम्बेडकर ने एक अनटचेबिलिटी मूवमेंट को ज्वाइन किया महाराष्ट्र में 1920s में। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर दिस पर्पस। 1924 में उन्होंने इंस्टीट्यूट फाउंड किया फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, बहिष्कृत हिताग्रणी सभा इन बॉम्बे। फिर 1927 में उन्होंने ऑर्गेनाइज करा समाज समाता संघ टू प्रोपोगेट करने के लिए अपने आइडियाज ऑफ सोशल इक्वालिटी होना चाहिए हर क्लास के लिए, चाहे वो लोअर कास्ट हो चाहे वो अपर कास्ट हो, देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन एवरीबडी। नाउ लेट्स डू थिंक एंड आंसर, darken the correct circle. Dash worked against caste system, Brahmo Samaj. Sati was abolished in 1829. Arya Samaj was established by Dayanand Saraswati. Dash worked against depressed caste system, Dr. B.R. Ambedkar. Let's do fill in the blanks. Ramabai began her social work with Dash in Pune, Pratna Samaj. Ved Samaj was established in Madras. Ambedkar launched the Dash movement in Maharashtra in 1920s. Untouchability.
Dash is widely considered to be the pioneer of social reform in Andhra Pradesh. Kandu Kuli Veer Salingam. Now let's do the true and false. Raja Ram Mohan Roy worked for the welfare of widows. True. Bethune started the first school for girls in 1849. True. Annie Besant started Theosophical Society and Home Rule movement in India. False. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra, Vidyasagar, Ramakrishna Paramhans were reformers of that era. True. Now let's do match the following. Now Arya Samaj, Swami Dayanand Saraswati. Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Rai. Pratna Samaj, M.G. Ranade. Ved Samaj, Jarbai Sridharam Naidu, and Iswar family Narayan Guru. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.